हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं आशा करती हूँ आप लोग पूरी तरह से ठीक ही होंगे। तो कल मैंने पढ़ा था अनुच्छेद 243 बी और 243 सी। अब पढ़ूंगी 243 डी। अनुच्छेद 243 डी क्या कहता है उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243D रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में 243D बात करता है। नंबर 1, सीट्स shall be reserved for A the scheduled castes and B the scheduled tribes। यानी जो रिजर्वेशन है वो SC और ST उनके जो सीट्स हैं वो रिजर्व सुरक्षित करने की बात की जा रही है, यानी सुरक्षित की जाएंगी। अनुच्छेद 243D रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। नंबर 1, सीट्स शैल बी रिजर्व्ड फॉर A द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड B द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत, यानी प्रत्येक पंचायत में। एंड द नंबर ऑफ सीट्स सो रिजर्व्ड shall bear as nearly as may be the same proportion in every panchayat, and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the panchayat at the population of the scheduled castes in that panchayat area, or of the scheduled tribes in that panchayat area bears to the total population of that area, and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a panchayat. Number 2, not less than 1/3 of the total number of seats reserved under clause first shall be reserved for the women belonging to the scheduled caste and as the caste may be the scheduled tribes। जो SC ST जो कम्युनिटी है उनके लिए 1/3, 1/3 जो सीट्स हैं टोटल नंबर का, जो 1/3 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होंगी टू द शेड्यूल्ड कास्ट और द केस में बी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नंबर 3, नॉट less than 1/3 including the number of seats reserved for women belonging to the scheduled castes and scheduled tribes of the total number of seats to be filled by direct election in every panchayat shall be reserved for women, and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in panchayat. Number 4, the offices of the chairpersons in the panchayats at the village or any other level shall be reserved for the scheduled castes and scheduled tribes and women in such manner as the legislature of a state may by law provide, provided that number of the office of the chairpersons reserved for the scheduled castes and scheduled tribes in the panchayats at each level in any state shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of such offices in the panchayats at each level at the population of the scheduled castes in the state or the scheduled tribes in the state bears to the total population of the state. Provided further that not less than 1/3 of the total number of offices of the chairpersons in the panchayats at each level shall be reserved for women,
Provided also that the number of the offices reserved under this clause shall be allotted by rotation to different panchayats at each level. Number 5th, the reservation of seats under clauses 1st and 2nd and the reservation of offices of chairpersons provided further that not less than 1/3 of the total number of offices of chairpersons in the panchayats at each level shall be reserved for women, provided also that the number of the offices reserved under this clause shall be allotted by the rotation to different panchayats at each level. Number 5th, the reservation of seats under clauses 1st and 2nd and the reservation of offices of the chairpersons. Other than the reservation for women under clause 4 shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334. Number 6, nothing in this part shall prevent the legislature of a state from the making any provisions for the reservation of seats in any panchayat or offices of chairpersons in panchayat at any level in favor of backward class of citizens. तो ठीक है, मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ, ये क्या कहा जा रहा है, अच्छे से समझ में आएगा। अनुच्छेद 243 गा अनुच्छेद 243 घा बात करता है स्थानों के आरक्षण के बारे में। नंबर 1, प्रत्येक पंचायत में का अनुसूचित जातियों और खा अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। नंबर का अनुसूचित जातियों के लिए और नंबर का अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। इसके लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में जो उसका जो अनुपात है वो उस पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचक क्षेत्रों को चक्रानुसार आवंटित किए जा सकेंगे। नंबर 2, खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये बात इसमें की गई है कि जो अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, उनकी स्त्रियों के लिए 1/3 जो सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 1/3 जो है वो उनकी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। नंबर 3, प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। नंबर 4, ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में से ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की अथवा उस
राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है, परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। परंतु यह भी है कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न पंचायतों को अनुक्रम से आवंटित की जाएगी। नंबर 5, खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है। अनुच्छेद 234 में अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। नंबर 6, इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। यहाँ पर बात SC ST के लिए तो आरक्षण उसमें उनकी महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3 सीट्स टोटल नंबर की 1/3 सीट्स हैं। उसके अलावा नंबर 6 में कहा जा रहा है कि विधानमंडल के पिछड़े हुए नागरिक यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, यानी उनके लिए उपबंध किया जाएगा और उनके आरक्षण से कोई भी उपबंध बनाने से उनको कोई रोकेगा नहीं, कोई प्रोहिबिट नहीं करेगा, मना ही नहीं करेगा। तो ये बात की जा रही है। मैं कल पढ़ूंगी अनुच्छेद 243वां पंचायत की अवधि आदि। पंचायत की अवधि क्या होगा, इसका कार्यकाल क्या होगा पंचायतों का, तो कल पढ़ूंगी मैं 243E आर्टिकल ड्यूरेशन ऑफ पंचायत एक्सेट्रा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आप लोग संविधान को पढ़ते रहें, इस महत्वपूर्ण अवेयरनेस को घर घर पहुंचाएं और एंजॉय करें। संविधान को पढ़ने का एक अलग ही एंजॉयमेंट है, तो उसको पढ़ें, अच्छे नागरिक बने। बस मेरी यही एम्बिशंस हैं और मेरी इच्छाएं हैं कि सब लोग संविधान को पढ़ें, जानें। ठीक है, जय भीम।